applied in multiple manners. So it's known as stretching, compression, bending. Okay. Let's study the definitions. ये लो जी। The property of the body by virtue of which it tends to regain its original size when the applied force is known as elasticity, and the deformation is known as elastic deformation. Okay. First, you compress it or you bend it, you leave it, it comes back to its original form and shape. That's called elasticity. And the deformation, if any, that is caused, will be known as elastic deformation. But Okay. there are things like mud and all which have no tendency to regain their previous shape and they're permanently deformed. So such substances are called as plastic and plasticity. Elastic substances deform temporarily, but if you remove the external force, they retain their original shape and size. Okay? And this is used in engineering design, मतलब specifically मटेरियल का जो होता है, बिकॉज बिल्डिंग बनेगी तो ईंटें सीमेंट ये वो सब एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस ऑफ द Sure. वेट। तो कल हम देख भी रहे थे बीम है, अगर बीम भी कल। बेंड हो सकती है ऐसे पैराबोला में, अपने ही वेट से यहाँ नीचे चली जाती है। आपने तो ऐसी बनाई थी स्ट्रेट, हाँ। बट अपने ही वेट से बेंड हो जाती है। लेकिन जब मकान बनाते हैं या ब्रिजेस बनते हैं तो वी टेक केयर कि ऐसी बेंडिंग ना आए। अच्छा। You can see the design of bridges, automobile, ropeways. Can we design an airplane which is very light but sufficiently strong? Which is light but strong. Why does railway track have a particular shape like I? Why is glass brittle while brass is not? So we have to study the uh, different types of loads or forces which act on different solid bodies and then decide which one is good for what purpose. Sure. Laboratory में सर elasticity पढ़ी जाती, behavior. The body is subjected to different levels of forces called as stress and different types, and then decided कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये मटेरियल सूटेबल रहेगा या उस एप्लीकेशन में किस टाइप की फोर्स प्रोमिनेंटली होगी परमानेंटली। जैसे व्हेन वी कट अ पीस ऑफ पेपर, राइट, इवन दैट इज अ फोर्स, बट इट्स नॉट अ टिपिकल फोर्स व्हेन यू कट अ पेपर using a scissor, right? It's a different type of force being applied. It is a force, but it's a perpendicularly applied to the piece of paper. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही तो है, प्लेन तो पेपर का ऐसे है ना, काट कैसे रहे हो आप उसके उसके ऊपर कट कर रहे हो ना, कैंची तो परपेंडिकुलर चल रही है, टॉर्क दो जैसे टुकड़े भी। अलग अलग हो जाते हैं। उसको जो तो कुछ कहते हैं, कटिंग फोर्स। शेयरिंग शेयरिंग बोलते हैं इसको, अच्छा। शेयरिंग stress and strain. Okay, so the words are stress and strain. When the force is applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small or large depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of the deforming force. The deformation may not be noticeable visually in the many materials, but it is there. When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. The restoring force is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. This restoring force is known as the stress. So you have a wire, you connect it to a weight, the wire will be subjected to some deformation. It may lengthen a bit, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. That's deformation. And it will develop an internal stress.
which will try to restore its position. जो डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ गई है वापस जाने की कोशिश करेगी. So this restoration force is known as the stress which gets developed in materials. So ये बड़ी प्रॉब्लम वाला है कि मटेरियल की एक क्षमता होती है जहां तक वो स्ट्रेस को झेल सकता है, फिर टूट जाएगा, नहीं तो वो फ्रैक्चर जैसे हो जाता है वो. ब्रिजेस ब्रिजेस हाँ, में। या बियॉन्ड अ सर्टेन स्ट्रेस द मटेरियल, सो इट इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट. मटेरियल की डिजाइनिंग भी स्ट्रेस को झेलने के लिए होती है, बट फिर भी एक लिमिट होती है, अपर लिमिट, जहां तक वो टॉलरेट कर पाएगा. नाउ इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन and A is the magnitude of the stress is F by A. Something very similar to pressure. Pressure is generally at a point, it is not at a large area, it is a small area and pressure. ये तो बड़े एरिया पे भी लग सकता है स्ट्रेस. जैसे कोई बॉल, छत है, सीलिंग, और ऊपर फ्लोर है, पूरा वेट आ रहा है इसके ऊपर, स्ट्रेस. अगला फ्लोर है. So there are three ways in which solid may change their dimensions when the external force is applied. One is a cylinder is stretched by two equal opposite forces normal to its cross-sectional area. So you have a wire is cylinder actually. It's a thin wire. Perpendicular. So you can pull it on both the sides. It'll lengthen a bit. And the restoring force which is generated in per unit area of this wire. So there is a restoration force which gets developed. That is called as tensile stress. Weight hanging weight. टेंशन Tensile प्लस stress. स्ट्रेस। जनरली टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मासलेस, वैसे तो मास वाले में भी होता है, बट उसके अंदर वी डोंट वरी अबाउट elongation ऑफ द मटेरियल. वी जस्ट टेल कि weight has traveled through the, so tension is a way by which the force travels through thread, and there is little focus on elongation or deformation. बल्कि वहां पे तो मानते हैं कि it is massless and no elongation happens. It is rigid. तो ये टेंसाइल स्ट्रेस इज दिस, जो वेट के साथ अगर आप रियलिटी में वायर बांधते हैं तो थोड़ी वायर खिंच जाती है. now if the so one is this elongation which is if you now जैसे गाड़ियों को ऊपर से गाड़ियों को क्रश करा जाता है, कार्स को, राइट, कबाड़ी में ये हाँ। कार्स आर टेकन टू अ प्लेस एंड क्रेन आती है ऊपर से इसको क्रश कर देती है, राइट. हम्म। ऊपर से दबा के ऐसे क्रश कर देते हैं कार को, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, दबाना. Okay? And together they are known as longitudinal stress. हम्म। Okay, so this is one type of deformation which you can cause, which is perpendicular to the cross sectional area of the body. दबा सकते हो ऊपर से, नीचे से भी. Crushing type of force, that's compressive. The key characteristic is either the length will go up or length will go down. Okay, so this change in the length per unit length, तो ये मान लो 5 मीटर का है, 5 meters wire, and the change is 0.005 meters, then we will say that strain is a ratio of 0.005 meter cause in 5 meter. Every 5 meter undergoes this change. If 1 meter, then this will be 5 divided by, sorry, उल्टा लिख दिया मैंने. 5 meter of original length undergoes a variation of 0.005 meters. 1 meter will go a change of this much. So this is known as strain.
the change in length per unit of original length. It's a ratio called strain. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, कुछ नहीं है. Called longitudinal strain. Now let's study a different type of, which I said is shearing stress and shearing strain. अलग होता है. Copy the diagram also. इसका असाइनमेंट मिला है? नहीं. चलो अभी तो हमें टाइम है. चैप्टर. हाँ, सबसे कर पहले लेंगे. चैप्टर कर लेते हैं, थ्योरी. हाँ ठीक है. सॉलिड्स. This is the way it looks. This is the way it appears. So if you have, ये तो longitudinal stress and strain था. But if you see this second one, B figure, the lower side is fixed. जैसे book में lower side is fixed, ऊपर से धक्का मारा. So you apply your force tangentially. The restoring force. So if the two equal and opposite are applied parallel to the cross sectional area of the cylinder, parallel ही है. So ये ऊपर से आपने इसको यहाँ नीचे से फिक्स करा, ऊपर से पैरेलली मारा है एरिया के ऊपर ऐसे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ शेयरिंग स्ट्रेस. हुक को भी अगर आप ऐसे नीचे फिक्स करके धक्का मारोगे तो ऊपर वाला पोर्शन आगे चला जाता है थोड़ा थोड़ा सारा. तो डिफॉर्मेशन हैपेंस. दिस डिफॉर्मेशन जनरेट्स अ internal stress in the book which wants to bring it back to the original position. This is called shearing stress or tangential stress. And the strain which is produced is delta x. वो जो ये दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये this is delta x. So delta x divided by its length, okay, L, is called as tan theta. ये वाला. So this is called angular displacement of the cylinder from the vertical. So vertically it was like this. It has undergone a slight angular displacement. It was like this, but now it has reached here. So this tells you the deformation, the angular displacement. 1%. Theta is equal to 10 degree. Hook का भी same example है. This is a practical example of a shearing stress. So tan theta, which is delta x by x, is equal to theta when theta is very small and is in radians. Next example is a solid sphere placed in the fluid. So this is a solid body which is being pressurized compressed from all the sides. So the force applied by the fluid acts in the perpendicular direction to each point of the surface, and the body is said to be set under hydraulic compression. So this is D. पानी के अंदर वो सच मतलब इट्स लाइक अ डाइव, जो डाइव मारते हैं अंडर वाटर डाइवर्स जो होते हैं, दे आल्सो फेस सिमिलर प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स. तो ये भी कहते हैं अगर डाइव एकदम लाइक जो चेस्ट केबल मारो ना, स्ट्रेट गिरो. दैट इज किलिंग मैन. यू हैव टू तो फिर कट वो द वाटर. इफ यू स्ट्राइक द वाटर
अगर आप ये हेड के सर के बल गिरोगे तो आपको कुछ नहीं होएगा। वो कट जाएगा ना, पानी ऊपर सरफेस टेंशन होती है, बट उसको काटते हुए जाना होता है। उसे टक्कर मारोगे तो लाइक अ रॉक। अगर पूरी बॉडी आपके पूरे पानी में गिरेगी ना, लाइक, हाँ। तो फिर पूरी स्किन एकदम यस। वूंड्स आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो इट्स वहां पे फिर चोट लगती है वो। हम्म। So the third type is this hydraulic, जो कंप्रेसिव है। जैसे कोई कोका कोला का डब्बा आपने डाल दिया पानी के अंदर, वो चारों तरफ से उसको प्रेशर लगा, अगर वैक्यूमाइज्ड है तो वैसे दब जाएगा, बट वैसे भी प्रेशर से, अगर प्रेशर अंदर कम है तो जनरली यही होता है। आदमी के साथ भी हो सकता है, अगर फेफड़े जो हैं बहुत हम्म। ज्यादा डेप्थ के ऊपर, आदमी के फेफड़े जो हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेच से फट जाते, मतलब खत्म हो जाते हैं। खत्म। अच्छा। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना नीचे, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है at a certain pressure, so that pressure inside your lungs is also maintained. So ये वाला जो है, this is compressive and hydraulic stress है, and so the internal restoring force, the strain produced by the hydraulic pressure is called as a volume strain, ठीक है। which means the volume change हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तीन पढ़े हमने, वन इज टेंजेंशियल और शेयरिंग, सॉरी, एक पढ़ा हमने टेंसाइल या कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा हमने एक, उसकी दो वेराइटीज हैं, elongation और कंप्रेशन की। दूसरा हमने पढ़ा टेंजेंशियल, और जिसका थीटा इज डेल्टा एक्स बाई एल। और अगला है ये वॉल्यूम स्ट्रेन। Now what are the laws that govern this chapter? First very important law is the Hooke's law. Okay? So you have seen that there are multiple types of stress and strains: volumetric strain, compressive stress. Okay, so for small deformation, very important, the stress and strain are proportional to each other. So stress is proportional to strain. This is known as the Hooke's law actually. Okay, and this constant of proportionality is called as modulus of elasticity. Hooke's ओके। law is an empirical law. हाँ जी, पूछो। नहीं, आप के कह रहे हो क्या? हाँ, K is called as modulus of elasticity. Stress is स्प्रिंग कांस्टेंट proportional. नहीं होता? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग थोड़ी ना है यार, स्ट्रेस और स्ट्रेन है, स्प्रिंग में भी होता है, बट वहां पे उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, अच्छा। K. Okay, so this relationship that stress is directly proportional, linearly linked to strain, is not exhibited by all the materials. कोई कुछ मटेरियल नहीं दिखाते। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कूल में आएगा पेपर में। एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, नए बच्चों से पूछा जाता है ये। कर्व समझाने को बोलते हैं, पूरा कर्व समझाओ कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग टू द वायर। वायर अंडरगोज डिफरेंट फेजेस, पॉइंट्स। बेसिकली हुक्स लॉ फॉलो करना बंद कर देती है वायर एक टाइम के बाद। जी रहा। So now let's study
what happens to Hooke's law and what is the relationship between stress and strain in reality. So there is in a standard test of tensile property, a test cylinder or a wire is stretched by an applied force. The fractional change is noted, which is the strain delta L by L is noted. The applied force is gradually increased in steps and delta L is noted. A graph is plotted between stress and the strain. A typical graph for metal is shown. Analogous graph for compression and shear stress may also be obtained, but this is for longitudinal. The shear stress curve may vary from material to material. These curves help us to understand how a given material deforms with increasing load. तो ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में भी आता है when we study in civil engineering strength of material. तो बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल का बिहेवियर एडवांस में पता होना कि अगर लोड डबल हो गया ट्रिपल हो गया 4 गुना 5 गुना तो क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है. From a graph we can see that in the region between O to A, Hooke's law is adopted. Very predictable. Stress is proportional to strain. Straight line is coming and you can see there is a permanent set of around less than 1%. मतलब elongation हो गई है. एक सेकेंड. हाँ जी. यस. हाँ जी. So you can see the straight line and so during this time the body is elastic. Now go to the point A. We will talk about this less than 1% and permanent set. Go to this place A to B. Slightly थोड़ा सा और force बढ़ा दी. And now you can see straight line behavior has vanished. It has become curvy. तो जितना stress बढ़ा उस proportion में strain नहीं बढ़ा A to B के अंदर. And they are not proportional to each other. Proportionality straight line थी ना, अभी ये थोड़ा सा ऐसी होने लग गई है. Now the body is still अब B पे भी if you leave the body will come back to its original मतलब elasticity retained है अभी भी. Though Hooke's law is not being adopted, followed. Okay, so this point B is called as a yield point. तो डायग्राम बनाना आएगा ये पूरा make a diagram and explain the typical stress strain curve for a metal. You will have to draw this diagram, mark the points, yield point, fracture point, permanent set, ये सब दिखाना पड़ेगा. इसका मीनिंग समझाना पड़ेगा क्या हो रहा है. ओके, तो बी पे the B point is called as yield point or the elastic limit. A to B, Hooke's law is not being adopted, but still, the if you remove the stress, the body will overcome the deformation and come back to its normal shape. It is still okay, and the corresponding B पे जो stress है उसको बोलते हैं elastic, sorry, yield strength of the material. Now, if you go beyond B, the stress developed exceeds the yield strength and the strain increases rapidly in for a very the portion of the curve between B and D show this. ये वाला. तो आपने स्ट्रेस तो इतना सा बढ़ाया है सिर्फ. यू कैन सी दिस इज द स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस बट बहुत ज्यादा खिंच जाता है वो तार जो है ज्यादा खिंच जाती है थोड़े से स्ट्रेस बढ़ाने पे. फ्रीली it increases. So from C to D, you can notice too much strain with the help of very little stress, change in stress. Even if you remove the load now, say at some point C, between B and D. So C का कोई significance अभी नहीं आया. D से D पे डायरेक्टली गए हो और अगर आप C पे मान लो लोड हटा देते हो, देख वेट करते हो कि क्या इट गोज बैक टू A, which is its Hooke's law region. It will not. It will not regain its original. मतलब B तक तो yield point तक it has a caliber to retain its original size. But after B, when it enters this B to D region, it will not be able to attain if even if you remove the stress permanently.
it will have a permanent डिफॉर्मेशन. डेल्टा एल परमानेंट हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा. जो हम बोलते हैं मटेरियल जो है, इट इज इन द रीजन ऑफ परमानेंट सेट, विच इज बी टू डी में परमानेंट सेट है. And this deformation is not elastic deformation. It is called as elastic deformation. Elastic deformation is only till B, जहाँ पे कुछ अभी भी, though linear Hooke's law is not being adopted, but still the material comes back to its original shape. The point D on the graph is the ultimate tensile strength. Now you have reached your upper limit. If you go beyond this, right, even by reducing the force, the fracture will occur. So the body from D to E, you can see the stress is being reduced, but D के बाद फ्रैक्चर, E पे फ्रैक्चर हो जाएगा. स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है. आप अपनी ओरिजिनल लेंथ से 30% तक पहुंच चुके हैं, और आपका जो है ये ई पे फ्रैक्चर हो जाएगा, इट ब्रेक्स. तो ये जितने भी मटेरियल जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं या कहीं पे मशीनरी बनने के लिए यूज होते हैं, ऑल दीज लिमिट्स शुड बी मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन. कब टूटेगा, कब इलास्टिसिटी लूज कर देगा, और कब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, और परमानेंट सेट मटेरियल की सेट। क्या परसेंटेज है. सो इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोजर, मतलब अगर ये दोनों पास पास ही हैं, द अल्टीमेट पॉइंट इज डी, ई आर, द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल. इफ दे आर फार अपार्ट, द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल. तो तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा. अभी भी ब्रिटल का मतलब है बस डी को क्रॉस करते टड़क टूट जाएगा, लेकिन डी के बाद भी थोड़ा सा और खींचेगा फिर टूटेगा. वी कॉल इट डक्टाइल. एक्चुअली डक्टाइल। जो डक्टिलिटी और ब्रिटल पढ़ते हैं हम छोटी अच्छा। क्लास में मेटल्स में, हाँ, वो मतलब वो इसकी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यस, दैट इज डक्टाइल, राइट. हाँ। वो और ये ब्रिटल है. होते हैं कि वो थोड़ा लाइक वो टूट जाता है हाँ, जल्दी टूट से। जाएगा, कड़क पापड़ होता है जैसे ब्रिटल. हाँ, नॉन मेटल्स आर सेड टू बी ब्रिटल, या मेटल्स आर सेड टू बी डक्टाइल. डक्टाइल एंड नॉन ब्रिटल। या तो ये चार्ट बनाना और इसको पूरा लिखना, ये पैराग्राफ, 0 to A क्या हो रहा है, हुक्स लॉ अडॉप्ट हो रहा है. A to B हुक्स लॉ नहीं हो रहा, लेकिन इलास्टिक लिमिट में ही हो. B to D प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हो. और डी के बाद ई, डी इज द अल्टीमेट पॉइंट. एंड डी के बाद मतलब यू कांट गो बियॉन्ड स्ट्रेस, और कोई फायदा बढ़ेगा नहीं. तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है. उसके बाद अगर आप कम भी कर दोगे तो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी और स्ट्रेन आ जाएगा डी टू ई में. अगर डी टू ई बहुत पास पास है और फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है डी के बाद, इट्स ब्रिटल. लेकिन डिस्टेंस है तो डक्टाइल. दिस this whole explanation till ultimate tensile point of D and the fracture point, you have to write the paragraph. ये मतलब पेपर में guaranteed question है. ये ठीक ग्राफ को पूरा समझाना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते है। हैं. कोई खास मुश्किल है नहीं, मतलब इजी सा है बड़ा. लॉन्ग आंसर में आएगा। हाँ, कह सकते हैं. पूरा ग्राफ बनाने को बोलते हैं, हम्म। पॉइंट्स मार्क करने को बोलते हैं, समझाने को बोलते हैं कि क्या मतलब है. हम्म। ठीक है। ओ वाओ मैन, लुक एट दिस. क्या ओके, देखो? इन्होंने हार्ट का जो हमारा अरोटा, हमारी जो वो होती है, एओर्टा, या द बिगेस्ट आर्टरी। I think it's, is it artery or is it a vein? नहीं, इट इज आर्टरी। इज Artery, एन okay. So आर्टरी। उसकी इलास्टिसिटी के बारे में उसका बना दिया, जो ब्लड फ्लो करता है उसके थ्रू, हाउ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. आई थिंक इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट होता हाँ, यहाँ पे लॉन्गेस्ट। कहीं होती है. आई थिंक हार्ट में इफ ही इट होती गेट्स है। कट, हार्ट। आर्टरी होगी तो बहुत डीप सीटेड होगी, वेन नहीं, होगी तो ऊपर आर्टरी। होगी. नहीं नहीं, आर्टरी ही होती है। हाँ, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द आर्टरी बॉडी। है तो फिर डीप होगी, अंदर होगी. वेना केवा होती है मेरे ख्याल से द लार्जेस्ट वेन.
वेना हाँ केवा। सुपीरियर वेना cava। या ओके, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू। वाओ, इट्स अ ट्यूब कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट है। ओके, क्या बात है, बायोलॉजी में भी, क्या बात है। वो तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, थोड़ा थोड़ा भी सुधार हो रहा है किताब में। Rubber can be pulled to several times its original length and is still returns to, yes, it does. But between rubber and a steel wire is more elastic because steel wire is able to generate a high amount of uh, longitudinal stress, restoring stress for a very little strain. बहुत थोड़ी सी चेंज होने पे भी वो चाहता है वापस आना, जबकि रबड़ जो है बहुत लंबा अपने आप को खींचने देता है। सो रबड़ इज एक्चुअली इन फिजिक्स लेस इलास्टिक बिकॉज वो अलाउ करता है ना लंबा होना। अच्छा, जो कमिला, जो जो वो ज्यादा हाईली खींचता है वो कम इलास्टिक हुआ ना इलास्टिक है। बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी टू गो बैक फास्ट टू ओरिजिनल, टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन। द मोर योर टेंडेंसी इज टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन, द मोर इलास्टिक यू आर। तो रबड़ इज मोर इलास्टिक ना। स्टील वायर इज मोर इलास्टिक। स्टील वायर कैसे वो इलास्टिक क्यों? कैसे हो? क्यों जरा सी स्ट्रेन पे ही वापस चली जाती है, बताओ। सर मैं अगर स्टील वायर मुड़ जाती है पूरी सर, वो वापस नहीं आती मुड़ फिर। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है, बेंडिंग नहीं, स्ट्रेट वेट टांग के। अच्छा, वेट टांगे खींच नहीं जाती है बहुत। भाई वो कहाँ डज इट वांट टू डिफॉर्म इटसेल्फ? वो तो सत्य मेटल है। डज इट वांट टू डिफॉर्म इजीली? बिकॉज ये तो व्हाई? नहीं। बिकॉज इट हैज अ हाई restoring longitudinal stress. अच्छा, What do you think is elasticity? The इलास्टिक। property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape. अच्छा। So this property of wanting to original to regain original size and shape is high in steel or rubber? स्टील। Steel में है, तो steel is highly elastic. Lot of people confuse elasticity with length, लंबा हो जाता है बहुत, elastic है। बट फिजिक्स नहीं मानती, फिजिक्स उल्टा बोलती है। The tendency to retain original size and shape is very high in steel. हम्म। Any elastic deformation that you create in steel will be can be overcome very easily because it has very high tendency to come back to its original shape and size. The tendency to regain the previous shape is high in steel. How high is the tendency to regain shape in the case of mud? मड, हाँ, नहीं आती, शेप ही नहीं आती। प्लास्टिक है फिर वो, टेंडेंसी नहीं है। इन इलास्टिसिटी जीरो। यस, जीरो, प्लास्टिक है, वेरी हाई प्लास। ऑन प्लास्टिसिटी। हाँ, नहीं, वही रबड़ हमारे जो ब्रेन में भी स्टील। बोलते हैं, क्या? we have something called as neuroelasticity. That means if we try to teach ourselves some new skill, हम्म। we will be able to learn it. अच्छा। हमारे न्यूरल पाथ जो होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। हमारे ब्रेन में न्यूरो इलास्टिसिटी और न्यूरो प्लास्टिसिटी दोनों होती है। ठीक, सही है, ओके। ये बायोलॉजी वाला चैप्टर है, हम्म, मतलब थोड़ा बायोलॉजी बहुत में है। काफी अप्लाइड है। ये हमारी बोन्स वगैरह सबकी अपनी अपनी ये। मैंने सर फिजिकल एजुकेशन में पढ़ी थी वैसे, बायोलॉजी, अच्छा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके।
Okay, now the elastic. Go back to this graph of stress versus strain. जो first part है stress Hooke's law वाला. Okay, the ratio of stress and strain is called as the that constant of proportionality. It's a characteristic of a material. Every material will have its own modulus of elasticity. Steel will have different, iron will have different, copper will have different. It's a great importance for structural and manufacturing engineering designs. Yeah. Okay, so experimental observation shows that for a given material, the magnitude of strain produced is same whether the stress is tensile or compressive. मतलब खींचने वाला हो या compressive हो. The ratio of tensile for compressive stress to the longitudinal strain is defined as Young's modulus. ये सबसे पहला है. This is longitudinal stress. This is longitudinal strain. How do you define longitudinal stress? Force, which may be the weight on the wire divided by the area of the wire. This is the elongation of the wire. This is the original length of the wire. So this is Y. ये समझ में आया यंग्स मॉडुलस. Young's हम्म, modulus is a ratio of stresses to strain. Hooke's law. Hooke's law for longitudinal stress and strain. K upon X. Sigma upon strain. Epsilon. Sigma is the stress. F upon A. जैसे वायर है ये इन लार्ज डायग्राम है वायर का. This is your thin wire and you attach a weight to it. The area being considered is this. The force being referred to is the weight of the block, which is getting applied on the cross sectional area of the wire. ये पूरी वायर है. सॉरी, ये पूरा वेट उस पर लग रहा है ना फिर. हम्म, तो ये एफ है, एरिया इसका है. ये एफ है, ये एरिया है. और ये कितना लंबा खिंच गई है, थोड़ा सा लंबा खिंच गई है अगर ये, दैट इज डेल्टा एल. और ये इसकी लेंथ है. Young's modulus of elasticity of a material, the ratio of stress to longitudinal strain. Any doubts that come in your mind? हम्म. So far, so good. खींचने पे हुक्स लॉ का पहला पार्ट where stress is proportional to strain. Stress is equal to K times strain. This K is called as the modulus of elasticity, but longitudinal stress और strain के अंदर इसका नाम है Young's modulus of elasticity. क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था काफी हुक्स यंग. लॉ वाला, उनका हम्म. नाम था यंग. रॉबर्ट हुक नहीं थे जिन्होंने हुक्स लॉ बनाया? वो तो हुक्स लॉ हो गया, बट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग तो अलग बंदा हो गया ना. अच्छा अच्छा, रॉबर्ट हुक यंग. हाँ बट ये बंदा तो अलग है जिसने यंग यंग एक्सपेरिमेंटली. अच्छा सर, उसका नाम यंग नहीं है. क्या है फिर? अ, यूनिटलेस. सर लियोनहार्ड यूलर. तो यंग का है फिर. सर यंग के नाम पे रखा गया है ये, थॉमस यंग यंग भी के तो नाम पे. किसके? थॉमस यंग. हाँ कोई था तो जरूर.
मतलब डिस्कवर तो वैसे लाइक लियोनार्ड यूलर ने करा है। ओके। अबे इनकी आपस में कोई, वो कोई जुगलबंदी होगी। हाँ होगा, क्रेडिट डिस्क्रेडिट, जिस कंट्री की वो चलती होगी उसने अपने साइंटिस्ट को चढ़ा दिया होगा कि चल तेरे को दे देते हैं ऐश कर। ये बोन का फ्रैक्चर कब होता है? बोन को बोलते हैं ना फ्रैक्चर हो गई, हम्म। एक्सीड्स द फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, बोन का फिर काफी ज्यादा होता होगा। बोन का है जी, बोन की डेंसिटी कितना, कितनी होती है? ये तो नहीं पता यार। बोन डेंसिटी वो भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बट हम तो नहीं पढ़ रहे वो। ये बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। हम्म। यहाँ तक तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है रफली। अच्छा, तो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रेडियस और फिब्यूला होती है, रिस्ट, हाथ वाली। सबसे ज्यादा स्ट्रेन तो ये झेल गई है, बट स्ट्रेस नहीं झेल पाई है। नहीं, स्ट्रेस तो सबसे ज्यादा सर रेडियस ने झेली है, जो हमारे शायद, हाँ क्या कहते हैं, एल्बो वगैरह में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेन तो लगभग सेम ही है। फिब्यूला की ज्यादा है थोड़ी। हम्म। ह्यूमेरस की सबसे इसके बाद कम है। वो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। हम्म। अब बोन वापस नहीं जा सकती, खिंच इतनी जाएगी। और इसके हम्म। बाद अगर खिंची तो टूट जाएगी, या कंप्रेस हुई हाँ। वो भी टूट जाती है, तो फ्रैक्चर पॉइंट ओके। कुछ खास तो नहीं झेल सकती। 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और एवरी मिलीमीटर स्क्वायर ये है। अब मटेरियल का अगर देखें, आयरन वगैरह का, अब ये तो बायोलॉजी में एप्लीकेशन हो गई एक तरह से। हम्म। बट क्या है मतलब, इसकी इलास्टिक रेंज में 70 तक ही दिख रहा है, 70-80 बोन की। उतना खींच दो तो काम टॉलरेट कर लेगा ये। अच्छा। स्ट्रेट लाइन है ना, हम्म। 70-80 तक आ, बोन की। मतलब हाँ 80 तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। उसके बाद जो है, इट इज एंटरिंग डिफॉर्मेशन। यहाँ हाँ। से वापस आ जाएगी अगर 80 तक होगी तो। ह्यूमेरस, हमेरस, ह्यूमरस। ह्यूमरस। ये लो जी, ये मटेरियल का है। ओए होए, हमारी कोई बोन है, एक कॉर्टिकल बोन। ओ बेटा, इसका देखो तुम, कॉर्टिकल, ये हमारे अच्छा। ब्रेन की तो नहीं है? शायद हो भी सकते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स तो खैर स्कल में भी हो सकती है। हम्म। आय सबकी पावर 10 है, लेकिन ये थोड़ी सी कम है, लेकिन काफी है। क्राउन ग्लास, एल्यूमिनियम, और टेंडन, ये हमारा टेंडन जहाँ चोट लगती है हमें एंकल वगैरह पे। टेंडन दो बोन्स को जॉइन करता है, टिश्यू यस, होते हैं। यस। ब्लड वेसल की भी काफी है, 2 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है लेकिन ये। तो हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है काफी थिक होती है।
और नाइस डायग्राम। कहाँ है? कहाँ डायग्राम? यही आएगा पक्का। क्या? किस चीज का? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, एक्सप्लेन। ये मतलब गारंटीड क्वेश्चन है, आके ही रहेगा। आज मार्कर में आएगा पक्का। दिखाता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा बेटर भी है देखने में डायग्राम। एक सेकंड यार, लेट मी वेयर अनदर स्वेटर, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। एक तो मुझे सर आप कंबल लेके बैठ जाया करो। सर पे टोपी भी डाल लूं मैं? मैं तो यूजली कंबल लेके ही बैठता हूँ। वेयर डू यू सिट? सोफा पे? हाँ। योर स्टडी टेबल? नहीं, सोफा पे। यू स्टडी ऑन सोफा? नहीं मतलब बैठता तो मैं वैसे स्टडी टेबल स्टडी पे टेबल ही होनी चाहिए, हाउ विल यू राइट यार? हूँ। वो एक टेबल आता है बेड पे रखने वाला। हाँ आता है, एक सेकंड, उस लुक पे। एट द ग्राफ। यस, टेबल आता है एक। अच्छा। सीन इट। लेजी बनना हो तो वही ले लो। ठंड में वैसे वही रहता है। मैं अब इसके अंदर सारा मिक्स कर दिया, इसी में वो डाल दिया दूसरा कचरा भी, डब्बे डुब्बे। ठीक है। हाँ। इसी से बनवाया करो, 20 को याद रहे। यही पढ़ा था ना हमने? हम्म। एक अच्छा वर्ड दिख गया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं होगी। फ्रैक्चर हम्म। पॉइंट। अच्छा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीमारियां भी लगती हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, डिफाइन। डिफॉर्मेट। ये लिमिट क्या है? प्रोपोर्शन, यहाँ पे हुक्स लॉ, मैक्सिमम स्ट्रेस वेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ जी। उसका फिर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता उसका। हाँ, लेकिन इलास्टिक लिमिट रहती है, वापस आ जाओगे। बट ये हाईएस्ट स्ट्रेस है, प्रोपोर्शनल लिमिट में इट्स हाईएस्ट स्ट्रेस। नहीं, जैसे ये भी लग रहे हैं कि ये सर आपको वैसे स्कूल में बायोलॉजी अच्छी लगती थी क्या? हम्म। बट ज्यादा बड़ा पंगा हो गया, कांट डू बोथ।
चैप्टर नंबर क्या था ये? ये 8 शायद। 8। 8 या 9। 9 होगा। ग्रेविटेशन के बाद है ये। स्कूल में हो चुका है हमारे ये? हम्म। Okay. Okay. Next page. हम्म। 50 g। 50 ग्राम्स बोल रहा है तो फोर्स तो इतनी होगी ना mg। ये किलोग्राम हो गया मास। वायर है, mg दे रखा है। फोर्स लगाई इसके क्वांटिटी ऊपर। दे रखी है 8 ग्राम। 10 किलोग्राम फोर्स मतलब 10 × 10। इसको भी मास ही रहने देता हूँ मैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने में मेरी मदद करेगा। जस्ट कीप इट एज अ मास ऑफ 50 ग्राम्स। फोर्स इज 10 किलोग्राम फोर्स मतलब 100 न्यूटन। डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 mm। सो आई नो द डेंसिटी एंड मास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो 8 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका? एरिया इंटू लेंथ। हम्म। सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। सो 8 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2.5 इंटू ए। तो ए इज इन मीटर्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ। लेंथ इज इन मीटर्स तो और ये बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो ए इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁵ डाइन्स। सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर ग्राम में, डिवाइडेड बाय एरिया 4 × 10⁻⁻⁴। दिस इज द स्ट्रेस। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ So Young's modulus of elasticity is equal to stress 100 by 4 into 10⁻⁹
divided by 2 mm into 2.5 to 10 raised to power 3. 10 raised to power minus 7 into 10 raised to power 3 to 2.5 divided by 8 is equal to 10 raised to power minus 4. 250 by 25 by 80. 5 5s are 5 16s are 16 3s are 3.1. 10 raised to power minus 4. So, but the unit should have been Newton per meter square upon strain, dimensionless. तो ये हम्म, मेरा आ रहा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. Try this now. Just a minute. Yes. Good. सर 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1/100. बस 100.
कैलकुलेट द स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 3.18 into 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर हम्म। स्ट्रेस स्ट्रेस। आ गया ना। elongation जी। डेल्टा एल स्ट्रेन। area upon the Young modulus. व्हाट? Sorry, stress upon the Young's modulus. क्या चीज? The elongation delta. नहीं नहीं, y इज इक्वल टू एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल। अब क्या निकालना है? टू फाइंड व्हाट? Delta डेल्टा एल। L. हाँ। तो एफ पता है, ए पता है, हम्म। वाई पता है, एल भी पता है, तो डेल्टा एल निकालना है। हम्म। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाय ए मतलब stress upon the Young इंटू modulus into the एल length. अपॉन वाई। So, oh, stress into length upon the Young modulus. यस। So, 3.18. ये 10⁻11 है, यंग्स। ठीक है। 10⁻11। 2 into 10⁻11. -5 meters. ये आ गई elongation. Strain on the rod. ठीक है। डेल्टा एल बाय एल। तो स्ट्रेन भी वही है डेल्टा। ये नीचे आ जाएगा ना बस, हाँ हाँ। डायमेंशनलेस। डेल्टा एल बाय मतलब एल। कि 1 मीटर तो लेंथ दे रखी है तो स्ट्रेन भी सेम वही होगा डेल्टा एल। हाँ, बट डायमेंशनलेस, दोनों मीटर मीटर डायमेंशन। कट जाएंगे। हाँ। सही है। कितना आया स्ट्रेन आंसर? इनका आ रहा है 0.16%। ओके। ठीक है, कोई वन बात। पॉइंट फाइव नाइन इंटू 10⁻⁴। इलोंगेशन आई है 1.59 मिलीमीटर। हाँ अच्छा। सही है। हाँ।
अगला करे। आगे हाजिर है। तो थर्मल पेन थे। नो। पहना करो। और उसमें फिर ये बहुत सारे पहनने नहीं पड़ेंगे, एक ही काफी होता है वो। है मेरे पास, मिल नहीं रहा। बस जोकी का एक ब्लैक कलर का थर्मल है, वो वही है पहनता हूँ। मेरे पास। सेम। जब एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो मैं इसको पहन के ही सो जाया करता हूँ। हम्म। काफी प्रोटेक्टिव है। यस। डेल्टा एल बाय एल का परसेंटेज निकालना है। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, that will be give you percentage per 100. If the length was 100, then what is delta L? डायमीटर। लेंथ क्या है वायर की? अरे निकालना ही परसेंटेज है सिर्फ, तो जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। स्ट्रेन का परसेंटेज निकालना है। सो बट हमें लेंथ नहीं पता ना वायर की इतनी है। चाहिए ही नहीं। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 निकालना है। तो पर 100 बेसिस निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा ना चाहिए होती है। इफ यू नो डेल्टा एल बाय एल इज 0.15, then it is 15% into 100.
पर हमें देखा रखा है 0.15 है। निकाल लेंगे ना। तो बस अरे भाई, हमें। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन ही तो है। स्ट्रेन की परसेंटेज ही तो निकालनी है। ठीक है। यही तो निकालना है सिर्फ। यही तो होता है ये। वाई पता है, सिग्मा पता है, एप्सिलॉन निकल जाएगा। एप्सिलॉन को 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। सिग्मा मतलब बोले तो स्ट्रेस, एफ स्ट्रेस ए भी तो, सिग्मा। पर हमें एरिया भी तो चाहिए होगा, मतलब फोर्स तो दे रखा है। अच्छा, डायमीटर से पाई और स्क्वायर आ जाता है। तो अच्छा, ओ हम्म। बट नहीं ना, पर तो वायर तो हमें उसकी लेंथ तो चाहिए होगी ना। नहीं चाहिए ना, क्योंकि मुझे सिर्फ स्ट्रेन निकालना है। अच्छा, एरिया स्क्वायर। मेरी विंडो बंद होने वाली खाने की। 3 मिनट। क्या? 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना ना। अच्छा, हाँ। मैं 6 बजे के बाद क्या कहते हैं, मेरा खाना खाना शुरू है कब से? यू कैन ईट, बट एजिंग में 6 o'clock लेटर यू कांट ईट एनीथिंग, स्पेशली व्हेन यूर 50 प्लस। सैड। 45, 45 के बाद यू शुड गेट कॉशियस। मैं खा तो लिया, अब अच्छा, सैड क्या है, कितना खाएंगे। बोर हो गए। अब तो आई वांट अ कैप्सूल। ये भिंडी का कैप्सूल है, ये दाल का कैप्सूल है, पानी के साथ पी लिया। मुंह में बेकार। फ्लेवर आ गया, पेट भर गया, खत्म। क्या गैस पे पकाना है, कैप्सूल बना लो ना यार। भिंडी कैप्सूल, तोरी कैप्सूल। लिखो कैलोरी, भाई कैलोरी 100 कैलोरी। दो हाँ, तोरी, एक तरबूज का कैप्सूल, और तरबूज खा लिया, चलो दिस इज 1/4 ऑफ अ तरबूज। मुंह में टेस्ट आएगा और पेट फिलिंग हो जाएगी, दैट्स ऑल। बट एवरीथिंग इन अ कैप्सूल। अच्छा। चपाती कैप्सूल, परोंठा कैप्सूल। बोर हो गए, मतलब गैस के आगे मंगा मंगा के। जरूर। मैं तो ऐसे दुनिया कभी नहीं चाहता, मतलब ऐसा एजिंग भी नहीं होनी चाहिए हम लोग की। हाँ हाँ जरूर बेटा, अमृत पी लो। तो मुझे नहीं ये पसंद, मुझे अमृत। नहीं होना 52 ईयर्स का। रिगार्डिंग। और सर फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स ऑल। आ गया समझ में। हाँ। कल मिलते हैं और अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं।